Good morning all. I, Dr. Jyoti Deshora, Associate Professor in School of Management Study, going to present and teach you today about the research methodology. What is research? First we have to understand. So let's understand what is the meaning of research. Basically research is a step-by-step process or systematic process by which we can give the answer of any question or give the solution of any problem. Now moving forward to meaning of the research. Research means search of knowledge. हमें कुछ खोजना है, हमें कुछ जानना है, तो हम उसे कहते हैं रिसर्च है। ये रिसर्च के बिना हम किसी भी को भी खोज नहीं सकते, किसी को जान नहीं सकते. नाउ इट एम्स टू फाइंडिंग आउट ट्रुथ. सत्य की खोज रिसर्च है. वी वांट टू फाइंड आउट एनी ट्रुथ. इट इज अ रिसर्च. अगेन it is a scientific investigation, means we have to do some analysis using some tools and collecting data, and then we conclude our research. So that's why it is, we can say it is a scientific investigation. It is a way of thinking, critically examining the thing. कुछ नए तरीके से सोचना, कुछ क्रिटिकल वे में सोचना, कुछ इनोवेटिव वे में सोचना ही रिसर्च है. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं. फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस, कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी, कुछ फैक्ट्स के बारे में हमें फाइंड करना है, किसी फिनोमिनन, किसी पर्सन स्पेसिफिक, किसी सिचुएशन के बारे में, तो हम उसे कहते हैं ये रिसर्च है. राइट. नेक्स्ट, रिसर्च इज ए ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे टू फाइंडिंग द आंसर ऑफ क्वेश्चन. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट, बेसिकली रिसर्च इज फाइंडिंग द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन और फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम. राइट. प्रॉब्लम हमारे को बहुत जगह मिल सकती है, बहुत तरीके से. हर जगह हम लोग किसी न किसी प्रॉब्लम को एनकाउंटर करते हैं, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, और हमेशा उनके सोल्यूशन को गेन करने के लिए, पाने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग और एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? सो रिसर्च, it is a combination of two words, that is re and search. So re means again, हम वापस से जिसे कहते हैं, that is re, and search means to find. हमें वापस से किसी चीज को खोजना है, पाना है, कुछ नया उसके बारे में जानना है, तो हम उसे कहते हैं it is a research. Now it is very clear, and we have already discussed about it is an organized way or systematic way to finding answer of any question. Again and again we are focusing on the same phenomenon. Let's move forward. Definition of research. Many researchers and many observers and scientists give the different definition of the research, and Clifford Woody is one of the person who gave the definition of the research, and he is saying that it is a redefining problem, formulating hypothesis or suggested solution, collecting, organizing the data, analyzing that, and reaching on the conclusion. So this is a basically meaning of research. We have to find the problem first, and then formulate the hypothesis, collect the data, and analyze the data, arrange and analyze the data, and then finally conclude and give the answer of the particular question or solution of any problem. Now the Redman and Mori gave one more definition in a single line, that is systematized effort to gain new knowledge. Systematized effort to gain new knowledge. कुछ भी नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ भी नया नॉलेज हमें गेन करने के लिए जो सिस्टमेटिक एफर्ट्स किए जाते हैं, सिस्टमेटिक वे में जो हम लोग काम करते हैं, उसको उस आंसर को पाने के लिए, दैट इज नोन एज रिसर्च. सो देयर आर मेनी. डी स्लिंजर एंड स्टीफन्स again gave the same definition. Slight difference in all the definition given by the different authors here, but the meaning is the same. Now different objective and aim and purpose of the research. Now first, to gain the familiarity with the phenomenon or to achieve view insight into in. कुछ भी फिनोमिनन के बारे में, किसी फैक्ट्स के बारे में हमको बहुत डेप्थ में कुछ पता करना है, जानना है, तो हम रिसर्च करते हैं. इसलिए हमारे लिए रिसर्च जरूरी है, पहला ऑब्जेक्टिव. दूसरा कहते हैं हम टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ग्रुप. किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप और इंडिविजुअल के बारे में हमें कुछ ज्ञात करना है, पता लगाना है, उसकी इंफॉर्मेशन को हमें जानना है, तो हम लोग रिसर्च करते हैं. टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, कोई भी इवेंट, कोई भी
ऐसा इंसिडेंस या कोई भी डिजास्टर की बात कर ले हम लोग, वो कितनी बार हो रहा है और क्यों हो रहा है ये जानना है अगर हमें, तो हम उसके लिए रिसर्च करते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की, किसी भी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स की फ्रिक्वेंसी अगर हमें पता करनी है तो हम लोग रिसर्च करते हैं। एंड ऑल्सो वी वॉन्ट टू फाइंड द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को अगर हम इस तरह से समझे, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो चीज़ वेरी करती है, कभी भी कांस्टेंट या स्थिर नहीं रहती है, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सिगरेट स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर। Okay, so here in this problem, in this topic of research, we have two variables. One is cigarette smoking and another one is the disease known as cancer. So these are the variables and we want to establish the relationship or dependency of these two variables on each other, or we can say what is the impact or cause of the cancer, that is cigarette smoking, like that. So we want to identify the causal relationship between variables is also known, consider the research। और इस रिलेशनशिप को पता करने के लिए जो हम काम करते हैं वो हमारी रिसर्च कहलाती है। हम रिलेशनशिप पता करने के लिए रिसर्च करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। नाउ व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च? सो लेट्स सी। फर्स्ट इज द रिलायबिलिटी। रिलायबल मीन्स कितना हम लोग भरोसा कर सकते हैं जिस किसी चीज पर, दैट इज रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। वैलिडिटी, हाउ वैलिड इट इज, कितना सही है वो जो रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। एक्यूरेसी, हाउ एक्यूरेट इट इज, कितना सही तरीके से हमने इसको किया, कितनी एक्यूरेसी है और किस तरह से हमने डेटा कलेक्ट किया और कितना रिलायबल है, सारी चीजें वो सारी। अच्छा, रिलायबिलिटी को हम एक और चीज से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि कोई वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन पे अगर हम अपना वेट लेते हैं और वो वेट डेली उस मशीन पे नियर अबाउट ही आता है, जैसे 59 हुआ तो 59 में आज भी वे किया, 4 घंटे बाद किया, फिर मैंने उसको नेक्स्ट डे भी किया, तो नियर अबाउट मेरा अगर वेट आता है तो दैट मशीन इज रिलायबल इनफ। और अगर डेली मेरा वेट वेरी करेगा उस मशीन पे तो हम कहेंगे दिस मशीन इज नॉट रिलायबल। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी। सो क्रेडिबिलिटी मतलब कितना इंपॉर्टेंस है उसकी। जनरलाइजेबिलिटी मतलब अगर मैंने किसी पर्टिकुलर एरिया में, जोग्राफिकल एरिया में रहकर रिसर्च किया है, लेकिन उसके रिसर्च के रिजल्ट अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वापस से मैं उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो रिसर्च के अगर मेरे रिजल्ट सिमिलर आते हैं या सब जगह एप्लीकेबल है वो, तो उसको मैं कहूँगी जनरलाइजेबिलिटी। नाउ एम्पेरिकल, by using the primary data, fresh data, or we want to hypothesize the research and then conclude. This is kind of empirical research. So empirical characteristics of the research is this. Then systematic approach, we have to follow a systematic pattern and steps to do the research. And the next one is controlled. It should be controlled, is not be violent enough, or हम कहें कि सोसाइटी के लिए हार्म करने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं हो। हमने कोई एटम बम बना दिया, ये कर दिया, और फिर उसकी वजह, एटम बम भी बनाए हैं लेकिन हमने उसको कंट्रोल वे में रखा है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम ले रहे हैं, वो ह्यूमन के लिए थ्रेट नहीं हो, इस तरह की कंट्रोल रिसर्च हमारी होनी चाहिए। तो दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे रिसर्च में है तो हम कहेंगे हमारी रिसर्च बहुत अच्छी है। नाउ व्हाट आर द significance or importance of the research? So let's see, a famous Hudson Maxine जो साहब हैं, उन्होंने कहा कि inquiry leads to invention और confidence is better than over confidence। उन्होंने कुछ ऐसा एक thought अपना दिया है, और जितनी इंक्वायरी होंगी उससे हम लोग रिसर्च की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे उसका आंसर खोजने के लिए। और एक और चीज़ जो मैं कहूँगी, इन्वेंशन एंड इनोवेशन जो दोनों पार्ट है जो हम लोग बात करते हैं वो हमेशा रिसर्च से ही इनिशिएट होते हैं, रिसर्च उन्हें इनिशिएट करती है। और हम ये भी कहेंगे कि रिसर्च लीड्स टू इन्वेंशन और इनोवेशन, राइट। सो रिसर्च के बिना सारी दुनिया अधूरी है। अगर हम कहें कि न्यूटन साहब ने अगर ग्रेविटेशन के 3 लॉज जो प्रपोज किए तो वो रिसर्च है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अगर E=mc² का फॉर्मूला दिया है तो रिसर्च है। कोरोना का वैक्सीन अगर हमारे सामने आया है इस डेडली डिजीज का, तो वो ड्यू टू दी रिसर्च। सो हाउ पावरफुल टूल रिसर्च इज बाय विच वी कैन सॉल्व और गिव द सॉल्यूशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इन बिजनेस, इन सोसाइटी, इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल एंड एवरीवेयर, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च।
Okay, let's move towards the basic process of the research and how many steps it covers. So let's see, there are basically 7 steps of research, and we have to follow the sequence of the all the steps as it is, because we cannot do like that. We first do the 7th step and then we move to the first step of like this. So we cannot do like that. So these are the basic 7 steps of the research process. So let's see, this is the first step, defining research problem. You have to identify and need to narrow down. First you think about the broad aspect of your research area and then narrow down it and then finalize your research problem. And second step is the review of literature. How many researchers previously done their research on your similar topic, what topic you have and problem you have decided on that particular topic, related topic, how many researchers worldwide done their research. हम कहें कि हमारे जो टॉपिक हमने फाइनल किया है, जो फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो किया है, उसके फाइनल की है, उसके बाद कितने लोगों ने उस मिलते जुलते टॉपिक पे पूरे वर्ल्ड में रिसर्च की है, उसको हम पहले पढ़ेंगे एग्जिस्टिंग लिटरेचर को, और वही चीज कहलाती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर. थर्ड स्टेप इज फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस. अच्छा, हाइपोथेसिस क्या होती है? हमारे माइंड में एक क्वेश्चन है. हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजप्शन, और अजप्शन भी कैसा? टेंटेटिव अजप्शन. अभी हमें पूरी तरह रिसर्च किया नहीं है और हम कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं कि क्या सही होगा क्या गलत होगा. कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि बीबीए के स्टूडेंट्स, वी वांट टू नो देयर सेटिस्फैक्शन ऑफ दी ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस, तो किसमें उनका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है. तो मैं 2 हाइपोथेसिस फ्रेम करूंगी इसके लिए कि दी बीबीए स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दी ऑनलाइन क्लासेस और दे आर सेटिस्फाइड फ्रॉम दी ऑनलाइन क्लासेस. 2 ही एजप्शन होंगे मेरे पास, और इस तरह से मैं हाइपोथेसिस बनाऊंगी इनिशियल बिगनिंग ऑफ दी रिसर्च, और फिर मैं इसको कंक्लूड तब करूंगी जब मेरी पूरी रिसर्च हो जाएगी और उसमें से कोई एक चीज़, एक हाइपोथेसिस मेरी एक्सेप्ट होगी कि या तो वो ऑनलाइन से सेटिस्फाइड है या नहीं है. दोनों कंडीशन तो एक साथ हो ही नहीं सकती. ठीक है, तो ये हमारा हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन. अच्छा, डिजाइन क्या होती है? एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि जब हम एक ड्रेस मटेरियल परचेज करते हैं तो हम टेलर के पास जाते हैं अपनी ड्रेस स्टिच करवाने के लिए, राइट. और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको अपना डिज़ाइन बताते हैं कि हमारा शर्ट का कॉलर ऐसा होना चाहिए, हमारी स्लीव्स ऐसी होनी चाहिए ड्रेस की, हमारी ड्रेस का लेंथ इतना होना चाहिए, बस सिमिलरली. और जब टेलर को ड्रेस स्टिच करनी होती है तो वो डिज़ाइन वाले पेज को ओपन करता है आपके, और उसकी आपके क्लॉथ की बिना दिमाग लगाए वो कटिंग कर देता है, क्योंकि उसको सारी डिजाइन पहले से पता है, और फिर वो आपकी ड्रेस स्टिच करके दे देता है. सिमिलरली रिसर्च के लिए आपका टॉपिक, आपका मटेरियल हो गया ड्रेस का, और फिर आप जो डिजाइन डिसाइड करेंगे वो डिजाइन आपको बनानी है, ताकि आप जब रिसर्च करें तो आपको कोई लोड नहीं लेना है, फटाफट से अपनी रिसर्च की डिजाइन अगर आपने फाइनलाइज कर रखी है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसकी रिसर्च अपनी कर लेंगे. तो डिजाइन के अंदर आपकी किस तरह की रिसर्च है, डेटा कलेक्शन के मेथड क्या है, डेटा कलेक्शन की टेक्निक क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सैंपल साइज क्या है, कलेक्शन मेथड क्या है, एनालिसिस के टूल्स आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपकी डिज़ाइन का पार्ट है, और ये हमें पहले से ही डिफाइन और डिसाइड कर लेनी है जिससे हमारी रिसर्च अच्छे से हो जाए, राइट. नाउ नेक्स्ट, डेटा कलेक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. 2 तरह के डेटा पे काम करते हैं हम लोग जब भी रिसर्च करते हैं. प्राइमरी डेटा जो बिल्कुल फ्रेश होगा, अब तक अवेलेबल नहीं है, हम पहली बार उसको कलेक्ट करेंगे. सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जर्नल के फॉर्म में, बुक के फॉर्म में पब्लिश्ड है, आर्टिकल है, कोई न्यूज़पेपर में है, वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, राइट, किसी ऑर्गेनाइजेशन की या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की. तो जो ऑलरेडी पब्लिश्ड और अवेलेबल है उस डेटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा, और जो अब तक कहीं नहीं मिला है, कहीं अवेलेबल नहीं है, हम पहली बार उसको कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा. डेटा कलेक्शन हो गया, उसके बाद हम उसको डेटा को सिस्टमेटिक अरेंज करेंगे टेबुलर फॉर्म में, और